But I am going to also teach you LH rule because we will be doing basics of LH rule at the end of this video as well. So LH rule क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन था, x approaching a, there is a function in the numerator and there is a function in the denominator. And आप लोगों ने इसकी फॉर्म डिटरमिन करी. फॉर्म मीनिंग when you put x equal to a, fx किधर ट्रेंड करता है, और when you put x equal to a in gx, what are the values that you are going to get? So if this is 0 by 0 form or infinity by infinity form, please remember this forms. So that means L'Hospital or L'Hopital's rule is generally, or we call it generally LH rule, is applicable only when it is a 0 by 0 form or an infinity by infinity form question. If you still are not convinced or confused, घबराओ मत, हम लोग जब जब क्वेश्चन लेंगे तब तब आपको क्लैरिटी बढ़ती जाएगी. So the rule here says that the same limit can be written as derivative of this divided by derivative of denominator. Remember, the derivatives are taken separately. Separately बोले तो मतलब यहाँ quotient rule नहीं लगा है. So they are to be differentiated separately. ठीक है ना? If numerator का derivative अलग से, denominator का अलग से. Remember, it has to be 0 by 0 form or infinity by infinity form. सर इसके बाद लगा सकते हैं क्या LH rule? Can we again apply L'Hopital rule? L'Hopital rule लगेगा या नहीं लगेगा L'Hopital, ये हम डिटरमिन करेंगे अगर अब ये 0 by 0 फॉर्म या फिर infinity by infinity form है या नहीं. If it is still 0 by 0 or infinity by infinity form, we can still go ahead and apply L'Hospital's rule or L'Hopital या फिर LH, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें. The target is to understand that how it works. Then again it could be applied. ठीक है? Fantastic rule. In fact, if you know this rule, believe me, 90% of the questions of limits you will be able to solve with just this rule, because whenever you see a question of 0 by 0 or infinity by infinity form, you can invariably apply this. But I am also going to teach you कि कहां पर LH rule जनरली लेंदी पड़ता है, वो भी हम सीखेंगे, so that हमारा टाइम सेव हो जाए. ठीक है? So we will start off with the questions where LH rule will not be used, and at the end of the session we'll start using LH rule. और धीरे धीरे करके हम हर चीज में LH rule कहां पर लग सकता है, कहां फायदा है, कहां नहीं लगाना चाहिए, we'll try to understand in this particular chapter. Alright, let's see this question. This question says that find the limit at x approaching 1 of this particular function. So function में ये एक सीरीज का कंपोनेंट, दिस इज अ सीरीज कंपोनेंट, राइट? एंड इफ यू वॉच क्लोजली, जैकपॉट देखा? सर दिस इज नथिंग बट actually a geometric progression, geometric series. So how many terms are there? Sir, they are starting from x and it is going till x raised to power n. That means from 1 to n. That means how many terms? n terms. अगर n terms थी तो सम क्या हो गया इसका? a into, और कॉमन रेशियो क्या है? yes, x raised to power n by x minus 1. ओके सर, लुक्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड. अब क्या करेंगे? कुछ नहीं समझ में आया, क्या करें? अच्छा, देखते हैं. तो ये क्या बन गया? अब अगर हम लिमिट पे जाते हैं अपने वापस, लिमिट x अप्रोचिंग 1 बाय x माइनस 1, अंदर क्या बन चुका है? x रेज टू पावर दिस x माइनस 1 माइनस n. ठीक है ना? कुछ इस तरीके से बन चुका है ये वाला. अब इसको कैसे रिजोल्व करें सर? ये तो अभी रिजोल्व हो नहीं पा रहा है यहाँ पर, है ना? अच्छा, सो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं. बॉटलनेक हैज कम इनटू पिक्चर, जबकि हमने सब कुछ सही करा है. दैट इज वेयर द हिंट कम्स. सर यहाँ पर क्या LH रूल लगा दें? LH रूल, ठीक है. अब देखना LH रूल से ये क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होता है. LH रूल सर आपने अभी क्यों यूज करा? आपको क्यों लगा कि LH रूल करना चाहिए? बिकॉज कभी आप बोलते हैं LH मत करिए, कभी आप कह रहे हैं LH करिए. सो देखो यहां पर फायदा क्यों हुआ? अगर मैं लिमिट x देखता हूं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो सीधा 1 आ जाएगा अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं x माइनस 1 को विद रिस्पेक्ट टू x. इफ यू डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर यू विल डायरेक्टली गेट. न्यूमरेटर में क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1, यू विल गेट 2x हियर, 3x स्क्वायर हियर. x की पावर n क्या बन जाएगी? n टाइम्स x की पावर n माइनस 1. और माइनस n का क्या होगा? दैट्स अ कांस्टेंट ना, वो तो जीरो हो जाएगा. Because when you say limit x approaching a
fx by gx and it is a 0 by 0 form or a infinity by infinity form, तो आंसर में हम क्या करते थे, हम इन्हीं के डेरिवेटिव्स को लिखते थे, and the derivatives were respect to the variable of limit. Variable of limit कौन है, x is the variable of limit. अच्छा सर, तो और एक अच्छी बात क्या हुई, इफ यू आर सॉल्विंग एंड डेरिवेटिंग दिस, इसको डिफरेंशिएट करके मेरे को आंसर पता चल रहा है कि 1 मिलना है, विच इज, उससे फायदा क्या हुआ है, सोचो फिर से, उससे फायदा ये हुआ दैट नाउ द न्यूमरेटर इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन. सर प्रॉब्लमेटिक, here it is problematic. Sir, why it is problematic? X को 1 डालो तो 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, बट इफ योर डिनोमिनेटर इज फिक्स्ड 1, देयर इज नो प्रॉब्लम. दैट मींस अब लिमिट की जरूरत ही नहीं है. आप सीधा क्या करेंगे, लिमिट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, x की वैल्यू पुट करेंगे सीधा. दैट मेक्स द क्वेश्चन इजी. तो अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे, ओहो, जैकपॉट अब लगा है असली. तो ये आया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इज योर फाइनल आंसर. एंड दैट इज व्हाई आई हैव आल्सो शोन कि मैंने यहां पर देखो जीपी में बीच में छोड़ दिया था क्वेश्चन. क्वेश्चन यहां पर भी सॉल्व होगा, बट यू शुड एक्चुअली नो दैट विच वे द क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व. किस चीज को करने से क्वेश्चन आसान होता है, किसको करने से क्वेश्चन अननेसेसरी लेंदी होता है, दोनों अप्रोचेस पता होना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अभी पहली बात अगर हम देखें क्वेश्चन की फॉर्म अगर हम बात करते हैं, so this is if I put x equal to 1, this I put x equal to 1, this becomes non-mathematical. ठीक है, infinity minus infinity form. अगर डिनोमिनेटर में 0 है, that means it is infinity 1 upon 0, है ना. पहली बात समझ में आती है that sir we have to take what, we have to take LCM, है ना. LCM में भी अच्छी बात क्या है, since it is 1 minus x cube, 1 minus x cube can be written as 1 minus x into 1 plus x square. तो अगर आप इसका एलसीएम लेते तो एलसीएम में आपको समझ में आ रहा होगा, एलसीएम इज 1 माइनस एक्स क्यूब ओनली, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1. सर अब तो पर ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन हो गया, समझ में नहीं आ रहा है. फॉर्म देखो सबसे पहले, अब कौन सी फॉर्म है, फॉर्म मतलब पुट एक्स इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर तो 0 आ रहा है, तो आधे टाइम अगर डिनोमिनेटर 0 है, आधा भी क्या, 99% टाइम यू विल फाइंड दैट इफ द डिनोमिनेटर इज 0, न्यूमरेटर 100% 0 बनना चाहिए, नहीं तो तुमने, दैट मींस यू हैव डन दी कैलकुलेशंस रॉन्ग. ये बात समझ लो यहां पर. तो अगर मैं x को 1 डालता हूं न्यूमरेटर में, नोटिस करो क्या बन रहा है, 3 माइनस 3, जैकपॉट लग गया, 0 बाय 0 फॉर्म आ गई. 0 बाय 0 फॉर्म है, दैट मींस LH रूल एप्लीकेबल है. ठीक है, तो अगर LH रूल एप्लीकेबल है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो. सर अब आप यहाँ डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो, देखो अंडर रूट है, नहीं, क्योंकि अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव बताओ जरा सोचो. रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो वो अननेसेसरली क्या करता है, कॉम्प्लिकेट करता है. क्यों, एक तो अंडर रूट गायब नहीं होता उस, और पावर नीचे आ जाती है, तो ऐसा कोई फायदा नहीं होता. बट अगर मैं कहता हूं सर जी डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, जो कि डिनोमिनेटर है मेरा, इसमें फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, एक तो a प्लस बी फॉर्मेट से इट हैज कम टू ओनली अ सिंगल फॉर्मेट, वेयर जहां पर पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अब शायद वी माइट बी एबल टू कैंसिल आउट x. एक तो ये फायदा होता है, ठीक है ना. अच्छा, 1 प्लस नहीं था मेरा, 1 माइनस था, तो ये माइनस 3x स्क्वायर हुआ डिनोमिनेटर. अच्छा, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है, तो ये 0 1 प्लस 2x. अभी कौन सी फॉर्म है सर, अभी कौन सा बड़ा फायदा हो गया. अब LH रूल डज नॉट मीन कि वो एक ही बार लग सकता है, आप उसको कितनी बार भी लगा सकते हैं. तो अगर मैं दोबारा लगाने की कोशिश करूं तो सर पहले तो बनना चाहिए ना कुछ, है ना. बट अब ये मत गलती करना, हमें पता है कि LH रूल लगा सकते हैं, तो आपने कहा नहीं सर मैं एक बार और, LH वंस अगेन, वन मोर टाइम. तो अगर आप LH वन मोर टाइम लगाओगे तो क्या बनेगा, 2 बाय माइनस 6x, लिमिट x अप्रोचिंग 1, तो आपका आंसर आएगा माइनस 2 बाय 6 और इक्वल टू माइनस 1 बाय 3, ये आंसर आएगा. बट हमें यहां सीखना है पहले, क्या LH अप्लाई भी कर सकते हैं. LH रूल कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन द फॉर्म इज 0 बाय 0. जिस मोमेंट पे आप अभी खड़े हैं, यहां पर ये माइनस 0, सी हियर, ये था 1 प्लस 2x बाय 3x स्क्वायर, क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म है, नहीं, ये 0 बाय 0 फॉर्म ही नहीं, तो आपने अप्लाई कहां से कर दिया. तो आप यहां पर एक्चुअली, दिस इज रॉन्ग, ये स्टेप आपका गलत है, प्लीज कीप दैट इन माइंड.
कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी डन। LH rule only works when you have 0 by 0. जितनी बार 0 by 0 आएगा आप उतनी बार LH लगा दीजिए, ठीक है। बट नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लॉलीपॉप है यार, क्यों? सर मेरे को पता ही है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। नॉन जीरो होते ही लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब सीधा क्या करेंगे, अब x को 1 पुट करो, ठीक है। तो ऊपर क्या बना 3 और नीचे बना -3, आंसर कम्स आउट टू बी -1। वेयर एज आप डबल LH लगा रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था, -1/3। द रियल आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज -1, ठीक है। तो LH याद रखिए कैन ओनली बी अप्लाइड if the form is 0 by 0, and it can be applied any number of times provided जब तक 0 by 0 और infinity by infinity form मिल रही है। क्लियर?